صبح کی پہلی روشنی ابھی پہاڑوں کے پیچھے سے نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی الحجر کی خاموشی ایک خوفناک آواز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے بیچ ایک سخت چٹان بیچ سے لرزنے لگتی ہے۔ زمین ہلکی سی کانپتی ہے، دھول ہوا میں اٹھتی ہے اور لوگ بے اختیار پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس چٹان کے اندر سے روشنی نکلتی ہے اور پھر ایک زندہ چیز پتھر کو چیر کر باہر آتی ہے۔ ایک عظیم اونٹنی۔ اس کا جسم پتھر سے الگ ہوتا ہے، مگر اس کی پیدائش پتھر کے اندر سے ہوتی ہے۔ لوگ کانپ اٹھتے ہیں، کسی کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے۔ پھر کسی نے بہت دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہوتا، یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا، یہ وہ نشانی ہوتی ہے جس کا مطالبہ قوم سمود نے خود کیا تھا، اور اسی لمحے ان کے امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک معجزے کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جسے اللہ نے ہر چیز دی، طاقت، عقل، ہنرمندی اور پہاڑوں کو شہر بنانے کی صلاحیت، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اور پھر جو ہوا وہ صرف ایک سزا نہیں تھی، وہ ایک فیصلہ تھا۔ وادی الحجر صرف ایک علاقہ نہیں تھی، یہ ایک نظام تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی یہ زمین پانی سے بھرپور تھی، چشمے بہتے تھے، باغات پھیلی ہوئی تھیں اور زمین زرخیز تھی۔ یہیں پر قوم سمود نے اپنی بنیاد رکھی۔ یہ قوم کمزور نہیں تھی، یہ قوم جاہل نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت دی تھی، سوچ کی گہرائی دی تھی اور ہنر دیا تھا جو اس دور میں کسی اور قوم کو نصیب نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہوتے تھے، یہ پوری بستیاں ہوتی تھیں جو پتھر کے سینے میں سیدھی لکیروں کے ساتھ تراشی جاتی تھیں۔ دروازے بلند ہوتے، ستون سیدھے اور نقش و نگار اتنے متناسب کہ آج بھی دیکھ کر انسان حیران رہ جائے۔ بازار روشن ہوتے، تجارت چلتی، رات کو مشالوں کی روشنی وادیوں کو جگمگا دیتی۔ زندگی محنت اور نظام کے ساتھ چل رہی ہوتی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک چیز بدلنے لگتی ہے۔ نعمتوں کا شکر کم ہونے لگتا ہے اور ان کی جگہ غرور لینے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ سب اپنی طاقت سے بنایا ہے، ہم پہاڑوں کو اپنی مرضی سے تراش لیتے ہیں، اس زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ جب طاقت شکر کی جگہ لے لیتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو پھر حق وہاں اثر نہیں کرتا۔ قوم سمود نے پتھر کے بت تراش لیے اور انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے، اپنی صلاحیت کو خدا سمجھنے لگے، اور پھر ظلم بھی آنے لگا۔ کمزوروں کا حق مارا جاتا، سربراہوں کی مرضی قانون بن جاتی۔ جو طاقتور ہوتا وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا، اور جو کمزور ہوتا وہ ہمیشہ دب جاتا۔ یہ سب کچھ انہیں غلط نہیں لگتا، کیونکہ جب انسان اپنی قوت کو ہی سب کچھ سمجھ لے تو پھر اللہ کا قانون اسے دور لگنے لگتا ہے۔ اور اسی دور میں اللہ نے ان کے درمیان ایک شخص کو پیدا کیا جو ان جیسا تھا، انہی میں سے تھا، مگر سوچ میں ان سے بہت مختلف تھا۔ وہی وادی جہاں پہاڑوں کو شہر بنایا جا چکا تھا، وہیں پر ایک ایسے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی فطرت باقی سب سے مختلف ہوتی ہے۔ قوم کے بزرگ کہتے ہیں، یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کی باتوں میں سکون ہے اور سوچ میں گہرائی، اور اس کا رویہ غرور سے بہت دور ہے۔ یہ تھے صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی وہ تنہائی پسند کرتے تھے، شور سے دور، بتوں سے دور، اور اس سوچ سے دور جو قوت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو ان کا مزاج اور واضح ہو گیا۔ نہ دولت انہیں کھینچتی، نہ طاقت انہیں متاثر کرتی۔ وہ اکثر وادی کے کناروں پر خاموشی میں اللہ کو یاد کرتے، اور پھر ایک رات
जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमा दी। सुबह होती है और सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हो जाते हैं। उनके अल्फाज सख्त नहीं होते, उनमें गुस्सा नहीं होता, वो सिर्फ सच होते हैं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पहाड़, ये शहर, ये नेमतें अल्लाह का इनाम है। शुक्र करो, जुल्म छोड़ दो, शिर्क से बच जाओ। ये दावत सिर्फ इबादत की नहीं होती, ये दावत निज़ाम की होती है। लेकिन जब हक गुरूर से टकराता है तो फिर टकराव लाजमी होता है। कौम के सरबराह हंस देते हैं। वो कहते हैं, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज तू हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें बाप दादा के तरीकों से हटाना चाहता है। ये सवाल सच जानने के लिए नहीं होते, ये इनकार होता है। सालेह अलैहिस्सलाम जवाब में सख्ती इख्तियार नहीं करते। वो कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ बचा रहा हूँ। ये नेमतें तुम्हारी ताकत का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का फजल है। मगर कौम सुनने को तैयार नहीं होती। उनके लिए ये बात सिर्फ एक चीज़ का मतलब होती है, उनकी आज़ादी पर सवाल। और जब गुरूर आज़ादी के नाम पर खड़ा होता है तो फिर हक सबसे ज़्यादा भारी लगता है। जब सालेह अलैहिस्सलाम की दावत कौम के दिलों पर असर नहीं करती तो सरबराहों का रवैया और सख्त हो जाता है। वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे नाबी हो तो हमारी आंखों के सामने इस पत्थर से वो ओंतनी निकाल कर दिखाओ। ये मुतालिबा सच जानने के लिए नहीं होता, ये इम्तिहान होता है। सरबराह वादी के बीच एक सख्त चट्टान की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो इस पत्थर के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये शर्त आसान नहीं होती, ये शर्त इंसानी अक्ल से बाहर होती है। मगर सालेह अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटते। वो कौम को उसी चट्टान के पास ले जाते हैं और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे रब, तू गवाह है, तू अपनी निशानी जाहिर फरमा। और फिर वादी का रंग बदलने लगता है, जमीन हल्की सी लरसती है, हवा थम जाती है, लोग सांस लेना भूल जाते हैं। फिर उस चट्टान में एक दरार पड़ती है, धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर पत्थर के सीने से रोशनी फूट निकलती है। उस रोशनी के अंदर से एक जिंदा मखलूक बाहर आती है, एक अजीम ऊंटनी। ये कोई आम ऊंटनी नहीं होती। कुरान इसे नाकतुल्लाह कहता है, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की निशानी। उसका कद, उसकी हैबत, उसका वजूद। कौम की आंखों ने जिंदगी में पहली दफा ऐसा मंजर देखा होता है। मगर मोजज़ा यहीं ख़त्म नहीं होता। सालेह अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना, इसके लिए एक कानून मुकर्रर है। एक दिन ये कुएं से पानी पिएगी और अगले दिन तुम सब पानी लोगे। ये सिर्फ कानून नहीं होता, ये इम्तिहान होता है। क्या कौम अल्लाह की निशानी का एहतराम करेगी या अपने गुरूर को कानून से ऊपर रखेगी? और इसी लम्हे कौम समूद अपने सबसे बड़े इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता है। जिस दिन नाकतुल्लाह कुएं पर आती है वो पूरा पानी पी जाती है, कुआं खाली हो जाता है। लोग बेचैन होते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह जब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मंजर बदला होता है। हर घर में दूध होता है, इतना दूध कि बच्चे भी सैर होते हैं, बुजुर्ग भी और जानवर भी। अल्लाह ने निशानी के साथ रहमत भी रखी होती है। एक दिन ऊंटनी का, एक दिन लोगों का। ये निज़ाम साफ होता है, सीधा होता है और इंसाफ पर मबनी होता है। मगर हर इम्तिहान सबके लिए आसान नहीं होता। कौम के सरबराहों को ये बात चुभने लगती है। वो कहते हैं, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक जानवर हमारे पानी पर हुक्म चलाएगा। उनके लिए मसला पानी का नहीं होता, मसला अपनी मर्जी का होता है। और फिर एक और चीज़ होने लगती है। कुछ लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। वो निशानी देखकर झुक जाते हैं,
और सच को मान लेते हैं। ये बात सरबराहों को और ज़्यादा खतरनाक लगती है। वो समझ जाते हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो लोग उनके पीछे चलना छोड़ देंगे, और फिर गुरूर ने सोच पर कब्जा कर लिया। वो कहने लगे, अगर ये ऊँटनी ना रही तो सालेह की बात भी ना रहेगी, और अगर निशानी मिट गई तो दावत भी खत्म हो जाएगी। इसी सोच ने एक साजिश को जन्म दिया। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूंगी। ये बात किसी इंसाफ से नहीं कही गई, ये गुरूर का ऐलान था, और इसी ऐलान के साथ कौम समूद अपनी हद पार करने जा रही थी। रात गहरी होती है, वादियुल हिज्र खामोश होती है, न बाजारों का शोर न लोगों की आवाज, सिर्फ कदम की हल्की सी आहट। नाकतुल्लाह दिन भर पानी पीकर वापस जा रही होती है। उसका चलना पुरसुकून होता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी आखिरी रात है। पीछे से कुछ लोग खामोशी से करीब आते हैं। पहला वार होता है, एक तीर। ऊँटनी का पांव जख्मी हो जाता है, वो लरसती है, और फिर बाकी लोग टूट पड़ते हैं। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाला, और फिर एक ही लम्हे में अल्लाह की निशानी जमीन पर गिर जाती है। वादी गूंज उठती है। नाकतुल्लाह की आवाज़ सिर्फ दर्द की नहीं होती, वो इम्तिहान के ख़त्म होने की आवाज़ होती है। और फिर कौम के लोग चीख कर कहते हैं, हमने ऊँटनी को मार दिया, अब पानी सिर्फ हमारा है। इसी वक्त सालेह अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं। उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका होता है, आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, तुमने क्या कर दिया? तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। कौम हंस देती है। क्या अजाब? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर अल्लाह का फैसला नजरों का मोहताज नहीं होता, और फिर अजाब का वक्त शुरू हो जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम कौम के दरमियान खड़े होते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। वो कहते हैं, 3 दिन तक अपने घरों में रह लो, उसके बाद अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। कौम हंस देती है। वो कहते हैं, 3 दिन? हम तो अपने महलों में रहते हैं, पहाड़ों के अंदर घर हैं, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है? मगर पहला दिन खामोशी के साथ शुरू होता है। सुबह होती है और लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे बदले हुए होते हैं, जर्द, बिल्कुल पीले। लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मगर फिर भी वो तौबा नहीं करते। दूसरा दिन आता है। इस दफा चेहरों का रंग सुर्ख हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, आसमान लाल नजर आता है, सांस लेना मुश्किल होता है। लोग घबरा जाते हैं, दिल बेचैन हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हक को तस्लीम नहीं करते। फिर तीसरा दिन आता है। सुबह होती है और चेहरे सया हो चुके होते हैं। वादी में मौत की बू फैल जाती है। लोग कहते हैं, हमसे गलती हो गई, शायद हमने हद पार कर दी थी। मगर अब वक्त खत्म हो चुका होता है। फजर से पहले आसमान लरज आता है, पहाड़ हिलने लगते हैं, जमीन कांप उठती है, और फिर एक आवाज, एक ऐसी चीख जो सिर्फ कानों को नहीं दिलों को चीर देती है। कुरान कहता है, उन्हें एक चीख ने पकड़ लिया। वो चीख इतनी सख्त होती है कि रूहें जिस्मों से निकल जाती हैं। और जब सुबह होती है तो कौमे समूद अपने घरों में बेहरकत पड़ी होती है, उल्टी हुई, बेजान। वो पहाड़ जो उनका फख्र थे, उनका मदफन बन चुके होते हैं। वो महल जो ताकत की निशानी थे, अब सिर्फ खामोश पत्थर होते हैं। अजाब के बाद वादी बिल्कुल खामोश होती है, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ टूटे हुए घर, गिरे हुए सुतून और पहाड़ों के सीने में खामोश शहर। वो लोग जो कल तक कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज जमीन पर बेहरकत पड़े होते हैं। लेकिन सब नहीं। कौमे समूद के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान चुके होते हैं। अल्लाह उन्हें बचा लेता है।
وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر صرف خوف محسوس نہیں کرتے، وہ شکر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی بات مان لی، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم بھی آج ان پتھروں کے نیچے ہوتے۔ پھر یہ مومن لوگ وادی الحجر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ زمین اب صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں، یہ ایک نشانی بن چکی ہے۔ سال گزرتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، مگر وادی وہیں رہتی ہے۔ آج بھی مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ موجود ہے۔